مسائل کے باوجود پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ کاروباری افراد کی انتھک محنت کے باعث ٹیکسٹائل کا شعبہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کراچی میں ٹیکسٹائل ایکسپو کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف K4 منصوبے کا آج کراچی میں سنگ بنیاد رکھیں گے۔ K4 منصوبے سے کراچی کو پہلے مرحلے میں روزانہ 260 ملین گیلن پانی کی فراہمی ہوگی۔ کراچی کے لوگوں اور صنعتوں کی پانی کی طلب پوری ہونے سے پاکستان کی معاشی ترقی ہوگی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا منصوبے کی بروقت تکمیل کو خاص اہمیت دینا خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف آج وہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب کریں گی۔ نوجوانوں کو پاکستان کی ترقی میں مثبت سوچ سے حصہ لینا ہوگا۔ نوجوان کو پھر روزگار ملے گا اور ملک میں کاروبار چلے گا انشاءاللہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہر دور میں نوجوانوں کو بااختیار بنایا۔ رواں سال لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ نیشنل انوویشن پروگرام کے ذریعے 3000 طلباء کو انعامات دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی شہزہ فاطمہ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ صدر مملکت کا 20 مئی کو جنوبی وزیرستان اور بلوچستان میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے ٹیلی فون پر اظہار تعزیت۔ شہداء کی وطن کے لیے گراں قدر خدمات اور قربانی پر خراج عقیدت پیش۔ پوری قوم اپنے شہداء کی قدر کرتی ہے، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ صدر مملکت۔ اقوام متحدہ امن مشن کی 75ویں سالگرہ۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں خصوصی تقریب۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امن مشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے 8 پاکستانی شہداء کو اعزازات سے نوازا۔ یہ شہداء 29 مارچ 2022 کو کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری۔ پی ٹی آئی ضلع کوہاٹ کے سینئر نائب صدر بشیر خان نے پارٹی عہدے سے مستعفی۔ 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات پر اظہار مایوسی۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ شہداء کے یادگار اور مجسموں کی بے حرمتی سے دل کو ٹھیس پہنچی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ بھارتی حکومت جو صورتحال دکھا رہی ہے، حالات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین۔ امریکی اسکالر نوم چومسکی کی بھی بھارتی حکومت پر تنقید۔ روس اور بیلاروس کے درمیان جوہری ہتھیار نصب کرنے کی دستاویز پر دستخط۔ روسی فوج کے یوکرین پر میزائل حملے، عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ باخمود کا کنٹرول روسی فوج کے حوالے کرنے کے لیے علیحدگی پسند گروپ کا انخلا شروع۔ پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی توقع۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ 34ویں نیشنل گیمز اختتامی مراحل میں میڈلز ٹیبل پر آرمی 180 تمغوں کے ساتھ سر فہرست۔ وابڈا کی 136 میڈلز کے ساتھ دوسری اور نیوی کی 88 تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سب سے زیادہ مرتبہ سر کرنے کا عالمی ریکارڈ۔ نیپالی شیرپا کامیریتا نے 8,849 میٹر بلند چوٹی کو ریکارڈ 28ویں مرتبہ سکیل کیا۔ 1994 سے کلائمبنگ شروع کرنے والے 53 سالہ شیرپا نے ایورسٹ کو رواں ہفتے میں دوسری مرتبہ سر کیا۔
फीफा मेंस अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। गैम्बिया की 2013 के चैंपियन फ्रांस को अपसेट शिकस्त। एक के मुकाबले में 2 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने यूरुग्वे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर लास्ट 16 का टिकट हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। कारोबारी अफराद की अनथक मेहनत के बायस टेक्सटाइल का शोबा बेहतरी की जानिब गामसन है। कराची में टेक्सटाइल एक्सपो की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्सटाइल का शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मसनूआत बेहतरीन मयार की हामिल हैं, जिनकी पूरी दुनिया में मांग है। कराची में टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब में वज़ीर तिजारत ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माशी बहरान है। ऐसी सूरत हाल में हम बरामदात को बढ़ाकर मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। वज़ीर तिजारत ने कारोबारी कंपनियों को दावत दी कि वो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें खरीदने के साथ साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, जहां माहौल इंतहाई साजगार है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि पाकिस्तान टेक्सटाइल दुनिया भर में अपनी मयार के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस शोबे को मज़ीद बेहतर बनाकर बैरूनी तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। उनका ये कहना था कि टेक्सटाइल के शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर बना रहे हैं ताकि सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़ों को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक्सपो में पेश की गई तमाम अशिया मेड इन पाकिस्तान हैं, जो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम K4 का संग बुनियाद रखेंगे और इस मौके पर होने वाली तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और सरमाकारों के वक्त से मुलाकात करेंगे और आइंदा बजट के सिलसिले में उनसे तजावीज़ लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाक और सूबाई हुकूमतों का मनसूबे की बरवक्त तकमील को ख़ास अहमियत देना खुशाइंद है। K4 मनसूबे से कराची के लोगों और सनतों की पानी की तलब पूरी होगी। मनसूबे से कराची को पहले मरहले में रोज़ाना 260 मिलियन गैलन पानी मुयसर आएगा, जबकि शहर में यौमिया पानी की तलब 1200 मिलियन गैलन है। उनका ये कहना था कि कराची के लिए वाटर बोर्ड को हब डैम और केंजर झील से तकरीबन 600 मिलियन गैलन पानी यौमिया फराहम होता है। वज़ीर आला ने कहा कि इस मंसूबे से मजमूई तौर पर कराची को 650 मिलियन गैलन पानी की रसद 3 मरहलों में मुकम्मल होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ आज पहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में बताया कि नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की में मुस्बत सोच से हिस्सा लेना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान को रोज़गार मिलेगा और मुल्क में कारोबार चलेगा। नौजवान फिर से बनाएगा रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज विहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस सिलसिले में पंडाल की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। मजीद तफसील जानते हैं शिराज दुरानी से। जी शिराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, विहाड़ी के हॉकी स्टेडियम में जो पंडाल है वो सज गया है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं और इस यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करना है, क्योंकि बड़ा जलसे आम मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पर असल में यूथ कन्वेंशन होने जा रहा है और जिस तरह रैलीज़ को दावत दी गई है कि वो यहाँ पर पहुँचें, ज़िला विहाड़ी के मुख्तलिफ जो तहसीलें हैं वहाँ से जो टिकट होल्डर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, जो MNAs MPAs हैं, उनको भी दावत दी गई है नौजवानों की तरफ से कि वो इस यूथ कन्वेंशन में यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। तो यहाँ पर एक रोज़ा जो दौरा है मरियम नवाज़ का, यहाँ पर इस हवाले से मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हैं
ہیں وہ بھی آج شام کو ہے متوقع ہیں. آج شام کو 6 بجے کے قریب جو ہے وہ ان کی آمد کا جو متوقع ہے یہاں پر, اور اس کے بعد یہاں پر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جہاں تک تنظیم سازی کی بات کریں تو تنظیم سازی کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مسلسل پچھلے 2-3 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی تنظیم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, اپنی جماعت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کوشاں ہیں, اور وہاڑی کا جو یہاں کا جو دورہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. جی بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, وزیر اعظم کی معاون خصوصی شزا فاطمہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہر دور میں نوجوانوں کو بااختیار بنایا, نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہر دور میں طلباء کو لیپ ٹاپ دیے, لیکن بدقسمتی سے 2018 میں لیپ ٹاپ اسکیم کو بند کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ رواں سال لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. نیشنل انوویشن پروگرام کے ذریعے 3000 طلباء کو انعامات دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال میں سیاست میں بد تہذیبی کو فروغ دیا گیا. ایک سیاسی جماعت نے نفرت کی سیاست کو پروان چڑھایا. 9 مئی کو ہمارے شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا. سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے. کیس کی سماعت چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کر رہا ہے. بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بینچ پر اعتراضات اٹھا دیے. مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کی طرف سے 4 شخصیات کی طلبی کے نوٹس وصول کرا دیے گئے ہیں. انکوائری کمیشن نے آڈیو لیکس میں شامل 4 افراد کو 27 مئی کو طلب کیا ہے. ان شخصیات میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری, ایڈوکیٹ طارق رحیم, صحافی عبدالقیوم صدیقی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب شامل ہیں. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو نہ قوم معاف کرے گی اور نہ ایسے واقعے کو پھر برداشت کیا جائے گا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. تفصیل عمران منصب خان سے. یوم تکریمی شہداء پاکستان کے حوالے سے پولیس لائنز اسلام آباد میں افسروں, جوانوں اور شہداء کے لواحقین سے خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پاک فوج تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وہ شہداء جنہیں اللہ رب العزت نے حیات جاویدہ عطا فرمائی, ان کی قربانیوں کو کوئی زائل نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ پاک فوج, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت اور سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں جو ملک و قوم کے وقار کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. چیف آف آرمی اسٹاف کی پولیس لائن آمد پر انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس ڈاکٹر اکبر خان ناصر نے ان کا استقبال کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یوم تکریم شہداء پاکستان پر اسکول کے بچوں سے غیر رسمی ملاقات کی, جن میں شہداء کے بچے بھی شامل تھے. آرمی چیف نے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا کہ پاک فوج شہداء کے تمام بچوں کی وارث ہے. شہداء کی لازوال قربانیوں کی بدولت آپ سے ہمارا قائم ہونے والا رشتہ مثالی اور ہمیشہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. آرمی چیف نے سپاہی عمران شہید کی بیٹی عذرا سے بھی ملاقات کی. 12 اپریل 2022 میں انگور اڈا وزیرستان میں شہید ہونے والے سپاہی عمران شہید کی بیٹی کے ویڈیو بیان نے پوری قوم کو اشبار کر دیا تھا. آرمی چیف نے شہید کی بیٹی کو GHQ کی تقریب میں خصوصی طور پر مدعو کیا. جنرل عاصم منیر نے انتہائی شفقت اور پیار سے قوم کی بیٹی کو یقین دلایا کہ شہداء کی قربانیوں کو ہرگز فراموش نہیں ہونے دیں گے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہماری نوجوان نسل, خاص کر بچے, مستقبل کے معمار ہیں. پاک فوج آنے والی نسلوں کے لیے ملک میں امن و سلامتی کے قیام کی خاطر ہمیشہ اپنی کوششیں جاری رکھے گی. عمران منصب خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے شہداء کے لواحقین سے ٹیلی فون پر اظہار تعزیت کیا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت نے 20 مئی کو جنوبی وزیرستان اور بلوچستان میں شہید ہونے والے سپاہی مدثر حمید, عبدالقدیر, سپاہی ظہیر احمد, نائک محمد عتیق اور رجب علی کے ورثاء سے ٹیلی فون پر بات کی اور شہداء کی اس عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء کی قدر کرتی ہے اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. صدر مملکت نے شہداء کی بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی. اقوام متحدہ کے امن مشن کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے امن مشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے 8 پاکستانی شہداء کو اعزازات سے نوازا. یہ شہداء
29 मार्च 2022 को कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। इन शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान, मेजर फैज़ान अली, मेजर मोहम्मद साद नोमानी, नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवालदार मोहम्मद इस्माइल, लांस हवालदार मोहम्मद जमील खान शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। पीटीआई जिला कोहाट के सीनियर नायब सदर बशीर खान ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अपनी सियासत के लिए फौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक को जलाने की और शुहदा की बेहुरमती की सख्त मसम्मत करते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने पीटीआई के साथ अपने दौर में वफादारी की। शुहदा के यादगार और मुजस्मों की बेहुरमती से उनके दिल को ठेस पहुंची, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी के ओहदे और रुकनियत से इस्तीफा देने का फैसला किया। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसरत जमशेद चीमा ने पीटीआई छोड़ने और सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि अगर कारकुन पुरअमन नहीं तो यकीनन पार्टी की तरबियत में कमी है। इस खित्ते में जिन लोगों ने आज तक इस मुल्क की सालमियत को इंश्योर किया है, उन लोगों के अगेंस्ट को नैरेटिव बने, ये डेफिनेटली काबिल कबूल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बनने दी गई है या हम उसको रोक नहीं सके, तो हम इसको अपने आप को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। यहाँ पे चूँकि एक तशद्दुद का एलिमेंट जो शामिल हुआ है, उस तशद्दुद के एलिमेंट्स के शामिल होने से जो एक बदसूरती सामने आई है, उसके होते हुए बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सियासत को कंटिन्यू जब नहीं कर सकते तो डेफिनेटली पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में गुज़श्ता रात शहीद होने वाले दोनों पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा लेवी सेंटर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आईजी पुलिस अख्तर हयात खान, सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर मंसूर अब्बासी, पुलिस अफसरान, एहलकारों और अमायदीन इलाका ने शिरकत की। पुलिस के चाक़ चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। DPO सलीम अब्बास का कहना है कि गुज़श्ता रात पुलिस लाइन्स खैबर में पुलिस एहलकार से हादसाती तौर पर दस्ती बम फट गया, जिससे 2 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने खातून जज को धमकी देने के केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रायल कोर्ट का इमरान खान को समन जारी करने का नोटिस गैर कानूनी नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो इमरान खान अपना एतराज़ ट्रायल कोर्ट के सामने भी रख सकते हैं। इमरान खान ने चालान रिपोर्ट के कॉलम नंबर 2 को चैलेंज नहीं किया है। फैसले में कहा गया है कि जुर्म होने या ना होने का तयन ट्रायल कोर्ट की जानिब से तफसीली जायजे के बाद किया जाएगा। इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के 1 अक्टूबर के हुक्म को चैलेंज किया था। इमरान खान की पुरतशद्दुद सियासत और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के बाइस PTI के अरकान ने राहें जुदा करने लगे। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी, डॉक्टर हैदर अली और जावेद अख्तर अंसारी ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। तफसील यासिर हुसैन से। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। मैं तहरीक इंसाफ से रिजाइन करती हूँ, इस्तीफा देती हूँ और इस पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। साबिक रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर हैदर अली ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर ममलकत फैसल करीम कुंडी के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर हैदर अली ने कहा कि रियासती अदारों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी इंतहा पसंद नजरिए जो हैं वो चल रहे हैं, पाकिस्तान डिवाइड है, हर लेवल पे डिवाइड है, और कुछ लोगों ने तो कोशिश की कि वो डिवीज़न पाकिस्तान के जो बहुत ही रियासत के इदारे हैं उसमें भी वो डिवीज़न लाएं, लेकिन नाकाम रहे। वजीर ममलकत फैसल करीम कुंडी ने हैदर अली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा कि इमरान खान ने कौम से हमेशा झूठ बोला, उनकी सियासत की हकीकत कौम के सामने आ गई है। इमरान खान साहब जो है वो सियासी पनाह के लिए जो है वो उन्होंने दरख्वास्त दे दी है US में। अमेरिका में भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस चल रहा है, उधर भी जो है
कांग्रेसमैन को चाहिए कि उनसे सवाल करें कि आपके ख़िलाफ़ जो अमेरिका में केस है उसका क्या बनेगा, आपके ख़िलाफ़ जो है बरतानिया में केस है उसका क्या बनेगा। जिस तरीके से हमारे शोहदा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें कबूल की हैं, उनको मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है सलाम पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA हाजी जावेद अख्तर अंसारी ने भी 9 मई के वाकयात के बाद PTI से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सियासत इबादत समझकर की और सिर्फ वो काम करेंगे जिससे मुल्क की बेहतरी हो। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दस्ते रास्त सलमान अहमद ने 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा है कि इन वाक़यात से उनका दिल बहुत दुखा है। अपने एक वीडियो बयान में सलमान अहमद ने वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, जो भी कुछ 9 मई 2023 को पाकिस्तान में हुआ वो मेरे दिल को बहुत उसने दुखाया और मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मैं सख्त मजम्मत करता हूँ कि जिसने भी जो नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को 9 मई को, कि उनको कानून के ड्यू प्रोसेस के थ्रू उनको गुजारना चाहिए और किसी को भी कभी भी आज या कल कभी भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात और PTI एक दहशतगर्द तंजीम है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाक अफवाज की तनसीबात पर हमला करके वतन दुश्मनी का सबूत दिया गया, असल हक़ाइक़ देखे तो ये लोग भाग गए। उन्होंने कहा कि शहदा की कुर्बानियों से ये वतन हासिल किया गया है, पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने कहा कि इमरान खान और उसकी बीवी को अदालतों में पेश होना होगा। नौशहरा की तहसील पबी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस और दीगर सियासी पार्टियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सियासी कारकुनों के साथ सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्रीरीन ने 9 मई के वाक़यात की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। मुल्क और कौम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वाशिंगटन में 5वीं क्लास के तलबा के एक वफ़द से गुफ्तगू में सफ़ीर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों ममालिक के नौजवान एक दूसरे के मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को परवान चढ़ाएंगे। एम्बेसी अडॉप्शन प्रोग्राम अवाम पर मबनी नुक्ता नज़र के ज़रिए कसीरुल सक़ाफ़ती ताल्लुकात की तामीर को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन इक़दाम है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के बारे में तलबा को जानने का मौका मिला है और उनकी पाकिस्तानी सक़ाफ़त में दिलचस्पी काबिल सताइश है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़मीन हज की सहूलत के लिए मदीना मुनव्वरा में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं राना फ़हीम अस्लाम। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए मदीना मुनव्वरा में मेन कंट्रोल रूम के जरिए सहूलत और रहनुमाई के शुबजात मसरूफ़ अमल हैं। डेफिनेटली हज में मसाइल होते हैं, जिस तरह एक घर में एक सहूलियात होती है वो तो एक जगह पे आप नहीं दे सकते, ज़ाहिर बात है। एक हुजूम भी होता है, एक रियाजुल जन्ना के चैलेंजेस है हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों को हम ओवरकम कर रहे हैं और हमारे जितने भी स्टाफ है ये 24 आवर्स काम कर रहे हैं। मेन कंट्रोल रूम में आज़मीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ शोबों का क़याम अमल में लाया गया है। इसका मकसद ये है कि हमारे हाजियों को रास्तों की रहनुमाई करना और उसके अलावा फिर उनके खानों का ख्याल रखना, रियाजुल जन्ना में एंट्री की सहूलत मुहैया करना। आज़मीन के अलामती कार्ड्स जो गुम हो जाते हैं वो दोबारा बनाए जा रहे हैं। कार्ड के लिए आते, कार्ड हमें मिल गया, बस कार्ड मदीना से हमें मिल गया है आराम के साथ। 800 कार्ड हम डुप्लीकेट जारी कर चुके हैं। मदीना में कायम मरकजी कंट्रोल रूम में शिकायत सेल कायम किया गया है, जहाँ पर आज़मीन अपनी शिकायत का इंदराज करके अपने मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। मोस्टली कंप्लेंट्स है इसमें ये होता है कि हाजी अपने होटल का रास्ता भूल जाते हैं। फिर उसके अलावा इनका जो अक्सर ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं हाजियों के रिलेटेड, जो इनका बैगेज है, यानी उनका बैगेज क्लेम के लिए भी हमारी टीम अलग काम कर रही है। मरकजी कंट्रोल रूम में शुबा गुमशुदगी भी कायम कर दिया गया है, जहाँ आज़मीन का सामान और रास्ता भूलने वाले पाकिस्तानियों को उनकी रिहाइश गाहों पर पहुँचाया जा रहा है। कल जो ना 12 साढ़े 12 बजे से अभी तक हमारा बैग नहीं मिला, उसमें हमारे कपड़े, एहराम वगैरह सारा सामान है। तो
तो आपका जो ना पाकिस्तानी हमारे ये इसका जो ना हवाला दिया होटल वालों ने, तो इसलिए हम जो ना परेशानी की वजह से आए। यहाँ पे तकरीबन जो आती हैं फ्लैट जिनके लगेज वगैरह गुम जाते हैं उनको हम होटल तक पहुँचाते थे। कोई आजी गुम हो जाए या किसी आगे का बैग गुम हो जाए